Yesterday, Prime Minister of India had conversation with the French Prime Minister, and from this we basically are taking this particular article. तो इंडिया फ्रांस का रिलेशन अगर मैं ट्रेस आउट करने की कोशिश करूं, then I will have to go back to the Cold War era because this is the right phase to calculate any country's relation विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. बेस्ट अगर आपको कैलकुलेशन देखना है कि इंडिया के साथ किस कंट्री ने कैसा बिहेव किया है फ्रॉम द स्टार्ट, देन यू विल हैव टू असेस द रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड वॉर एरा. तो कोल्ड वॉर एरा में हमने यूजुअली देखा है दैट कंट्रीज वर ईदर इन द US bloc or Soviet Union's bloc or USSR's bloc. We were basically with the NAM, that is non-aligned movement. बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई कंट्री बाय स्टिल बीइंग इन अ वेस्टर्न ब्लॉक और इन अ कम्युनिस्ट ब्लॉक इज स्टिल supportive of India during the Cold War era. So this was this particular country, that is France, which throughout the Cold War era was supportive of India and India's policy. So France has been a regular supporter throughout the Cold War era for India and इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो अगर आपको बताने पड़े, सो यू कैन डेफिनेटली कोट दैट स्पेस कोऑपरेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ relations between India and France. Space cooperation में France was the first country which helped India basically to come up with its first space launch center at Sriharikota. So France helped India to come up with its space cooperation center. It even provided India with the most then required arsenals and even aircrafts, especially in 1960s. 1960s was a difficult decade for us because of multiple wars. 1962, 1965, we had two wars in 1960s, and during that time France basically supported us by providing us the aircraft. तो इंडियन एयर फ्लीट में it definitely had provided us a great support and boost to the India in 1960s era. तो एक स्पेस कोऑपरेशन आप मेंशन कर सकते हैं कोल्ड वॉर एरा में, और 1960s में कैसे फ्रांस ने इंडिया को डिफेंस कोऑपरेशन में अपना हेल्प एक्सटेंड करी थी, ये आप चीजें मेंशन कर सकते हैं. स्पेस कोऑपरेशन में आपको श्रीहरिकोटा मेंशन करना है. दैट श्रीहरिकोटा वाज बेसिकली helped by France, and so we could establish it as a space launch center. It also provided us few of the space launching technologies like those of Viking. तो वाइकिंग एक टेक्नोलॉजी है जो फ्रांस ने हमें उस वक्त प्रोवाइड करी थी इन 1960s. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो उस वक्त आप डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बताने के लिए कोल्ड वॉर में कैसे फ्रांस वो सपोर्टिव ऑफ इंडिया एंड इंडियाज पॉलिसी. 1998 again is a watershed era or watershed time wherein we can easily assess relations of India with various other countries because of our nuclear test. So we conducted nuclear test in 1998, and it is generally observed that most of the Western countries or the countries which support the Western countries' ideology, they basically either had gone with the sanctions or had reduce their levels of engagement with India because of 1998 nuclear test. But France was the first country to open talks with India after India's 1998 test. So on the continuous basis, France has been a good supporter of India and has been has maintained very cordial relations with India throughout its time, that is right after the independence till 1998, because 1998 के बाद जनरली इंडिया ने हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे हैं, स्पेशली आफ्टर 2001, बिकॉज यहां से यूएस ने अपनी पॉलिसी प्रो इंडिया कर ली थी फ्रॉम प्रो पाकिस्तान. तो इसीलिए 2001 के बाद आपको हर कंट्री के साथ के अच्छे रिलेशंस देखने को मिलेंगे विद इंडिया. लेकिन फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसके थ्रू आउट अच्छे रिलेशंस है विद इंडिया. फाइन. तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता हूं जो डेफिनेटली आपने एग्जामिनेशन में लिखनी है. 1998 वाज द टाइम व्हेन इंडिया एंड फ्रांस signed strategic partnership treaty. So it was way back in 1998 that we realized
that we together can definitely become strategic partners. And there were basically three pillars of our strategic partnership, and still we are emphasizing only on these three pillars. So these three pillars, you can call it as conventional areas of convergence. Conventional areas of convergence. हम बाकी bilateral relations में कैसा देखते हैं, we basically look at the contemporary areas of convergence. लेकिन फ्रांस के साथ we have had enjoyed conventional areas of convergence and also we have contemporary areas of convergence, जो मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा. तो ये जो तीन conventional areas of convergence हैं, those are basically defense. This is clearly manifested from the 1960s policies of France when it provided air fleet support to India, it provided space cooperation to India and missile launching technologies to India. Fine. It also helped India in 1984 to set up the Jatapur nuclear power plant in Maharashtra. So Areva was facilitated by the France to help India establish this particular nuclear power plant. इसमें कुछ limitations हैं जो हम आगे discuss करेंगे जैतापुर power plant में. Second was space cooperation. ये भी clearly witness आप कर सकते हैं from the history of the relations. And the third is civil nuclear cooperation. So these three are the important pillars or the conventional areas of convergence between these two countries. फ्रांस के साथ हमारा एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये रिलेशन, ये स्पेशल जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं, बहुत ही कम कंट्रीज हैं जिनके साथ आप ये टर्म यूज कर सकते हैं. वन सच कंट्री इज भूटान. स्पेशल here means that irrespective of the global dynamics, a country is always there for you. So such is this country, that is France. Previously, if I can say about 3 to 4 years back, Russia was also such a country because Russia has always supported India since 1947. लेकिन 2014 के बाद से रशिया ने जब से अपनी पॉलिसी चेंज करी है and it has become more basically it has adopted the policy of realism. 2014 के बाद उसने अपना एम्बार्गो अपलिफ्ट कर लिया है पाकिस्तान के ट्रेड डील्स के साथ, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो फॉर्म कर रहा है. देन इट इज आल्सो नाउडेज ट्राइंग टू इंडिकेट इट्स partnership or it is trying to get involved into the CPEC between India and China and Pakistan. So such kind of activities of Russia definitely has now shown its little bit of dual nature, सूटिंग द कंटेम्प्रेरी नीड्स. हालांकि उसकी अपने कंपल्शंस हैं. क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद उस पर काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं. यूरोपियन के साथ उसका ट्रेड बहुत ज्यादा कम हो गया है. सो इट वाज natural for Russia to go to the China and Chinese bloc basically. So it has did that. But Bhutan, Russia, France, these are the countries with which India enjoy or has always enjoyed a special relationship. तो ये तीन एरियाज ऑफ कन्वेंशनल कन्वर्जेंस है. इसके अलावा हम कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन France and India. So what are the new other areas of cooperation? Now these are more contemporary in nature. So first is climate change. यहाँ पे best example है आपके पास International Solar Alliance. ये आप definitely यहाँ पे drop कर सकते हैं. Fine. And second is sustainable development. So sustainable development and climate change both are little bit different out here. Climate change is more basically specific to the changing of the climate, you can say, that is global warming affect हो रहा है. उसमें कैसे आपको international level पे कैसे convergence achieve करना है. We are trying to do that through this level of convergence or through this particular provision of this new area of convergence. लेकिन जो sustainable development है, it is basically more of bilateral in nature. ये हम दोनों countries आपस में attempt कर रहे हैं with each other, and mostly France is helping us in achieving sustainable development policies or in order to come up with more sustainable development policies. So what are the points that you can mention under here? You can easily mention a smart city concept, स्मार्ट सिटी, अर्बनाइजेशन ओवरऑल यू कैन मेंशन. ये दो एरियाज ऐसे हैं जहां पे फ्रांस हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है थ्रू by providing its own technology to us. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे. फ्रांस हैज ऑल्सो साइंड एग्रीमेंट विद इंडिया टू डेवलप सिटीज लाइक चंडीगढ़, नागपुर एंड पौंडीचेरी. तो पौंडीचेरी, यनम,
कराईकाल, ये सारे उसके पहले टेरिटरीज रह चुकी हैं, तो ये वहां पे आज भी अपना इंटरेस्ट शो करता है, उनको डेवलप करने की कोशिश करता है विथ विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं बिटवीन द कोऑपरेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज। कुछ और अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो बीच में इमर्ज हुए थे एंड स्टिल आर इन एग्जिस्टेंस एंड कैन फर्दर गेन ग्राउंड्स, उनमें से कुछ पहले मैं यही कंटेम्पररी पे मेंशन कर देता हूं। कंटेम्पररी में हम थोड़े से और यहाँ पे बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज टेररिज्म। फ्रांस इज ऑल्सो अ बिग विक्टिम ऑफ टेररिज्म। रिसेंटली भी हमने देखा था कि फ्रांस में अटैक्स हुए हैं, लोन वॉल्फ टेरर अटैक की प्रॉब्लम, रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम फ्रांस में ही बहुत ज्यादा फेस करता है। एंड इंडिया हैज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म एंड इवॉल्व फॉर्म ऑफ टेररिज्म। सो फ्रांस शेयर्स सिमिलर काइंड ऑफ फियर्स विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म। इसीलिए दोनों कंट्रीज ये कोशिश करती हैं कि हम जॉइंटली फाइट कर सकें विद दिस पर्टिकुलर menace, that is terrorism. Then both the countries have shared commitment towards rules based multipolar world, and because of this you will find one important thing, that since both of us are moving towards, or both of us have shared commitment for the multipolar world, so France is also not very much supportive of China's assertive policy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है दैट नो मैटर हाउ बिग इज द कंट्री और नो मैटर हाउ influential a country is, you will feel or you will see that some or the other time that particular country gives way to China because of huge presence of China in the geographic, strategic and economic spheres. ये रशिया ने भी करा है, Russia has also given way to China to some or the other extent, but France is this one country which maintains only economic relationship with China. फ्रांस के strategic relations नहीं है चाइना के साथ। ये important है आप लोगों के लिए जानना, because this is why you can call France a special country or a country with which we enjoy special relationship. तो मल्टीपोलर वर्ल्ड को दोनों कंट्री सपोर्ट करती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन मेंशन इज मैरीटाइम कोऑपरेशन। Maritime cooperation is now one of the most significant strategic area for India, क्योंकि इंडो पैसिफिक एंड बिकॉज ऑफ क्वाड, ये दो चीजों के कारण, एक इंडो पैसिफिक विजन और एक क्वाड कंसल्टेटिव फोरम, इन दो चीजों के कारण इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन की तरफ जो अटेंशन डाइवर्ट हुआ है, दैट इज significant, and countries which are now reaching out to India for enhanced maritime cooperation with India, that has also increased to significant levels. And one such country is France as well. तो फ्रांस का already presence है इंडियन ओशियन रीजन में. It also enjoys near around 20% of the exclusive economic zones in the Indian Ocean region. Why? Because of its foreign or overseas territories like Reunion Island. तो Reunion Island है, Mayotte Islands है, तो ये सारे आइलैंड ऑलरेडी फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरीज हैं जो इंडियन ओशियन में है. Because of that, it already has presence in Indian Ocean region, and now it wants to secure its ties with India, especially in the maritime cooperation, because of the growing or emerging India's influence in IOR. तो मैरीटाइम कोऑपरेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया है और ये लेटली इमर्ज भी हो रहा है इन द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. इसमें कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं. अच्छा, मैंने आपको आइलैंड्स का नाम तो बता ही दिए, रीयूनियन और मायोटे आइलैंड्स, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा. एक एग्जांपल आप और मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंटली फ्रांस ने इट बेसिकली सिग्नल्ड इट्स willingness to become partner
in a maritime exercise in the Indian Ocean region, in the Aussie Index exercise. Aussie Index मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही थी इंडियन ओशन रीजन में. वहां पे फ्रांस ने भी पार्टिसिपेट करने की अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करी थी. सो दिस इज क्लियरली इट इज वेरी मच कैटेगोरिकल कि कैसे फ्रांस अब इंडिया के साथ एक्टिव मेंबर बनना चाहता है इन दी मैरीटाइम कोऑपरेशन, स्पेशली इन दी IOR रीजन. कुछ अब स्पेशल मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं जो डेफिनेटली इनमें से कोई भी पॉइंट्स, दो चार पॉइंट्स भी अगर आप एग्जामिनेशन में कोट कर पाए सो दैट विल बी ग्रेट. The first is that we have ensured regular institutional dialogues between both the countries. तो हम दोनों के बीच में, हम दोनों that is India and France के बीच में we have ensured regular, on a regular basis we hold institutional dialogues. So institutional dialogues are exchanged through the medium of NSAs, National Security Advisors, दोनों कंट्री के. they exchange dialogues at regular intervals between both the countries. तो ये इंश्योर करता है कि आपकी डिप्लोमेसी कभी भी ऑफ द ट्रैक नहीं होगी. You always will be streamlined and your areas of cooperation and convergence will always be emphasized upon. ये एक चीज इंपॉर्टेंट है. Now we will talk about few of the agreements that India and France have signed recently. तो strategic partnership तो बहुत पुरानी हो गई है. Recent में इंडिया और फ्रांस ने क्या साइन करे हैं रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स, वो इंपॉर्टेंट है. So we have a joint working group on terrorism. टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस और इंडिया के बीच में, आप इसको स्किप नहीं करेंगे. मैरीटाइम कोऑपरेशन को आप स्किप नहीं करेंगे इन दी कंटेम्परेरी एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस. यहाँ पे जॉइंट वर्किंग ग्रुप है एक टेररिज्म पे बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. इसमें भी रेगुलर लेवल पे इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज, बोथ एट द सेक्रेटरियल लेवल एंड द मिनिस्ट्रियल लेवल. दोनों लेवल्स पे इस पे रेगुलर बेसिस पे कंसल्टेशंस किए जाते हैं. देन देयर इज एन एक्सचेंज एंड रेसिप्रोकल प्रोटेक्शन of classified and protected information. So as we have a relationship or an agreement with USA, you can remember GSMIOA, which was signed between India and USA in 2001. इसको हमने डिस्कस करा था, जो बेसिकली फैसिलिटेट करता है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज. सो सच इज एन एग्रीमेंट विद द फ्रांस. इट इज नेम्ड एज exchange and reciprocal protection of classified or protected information. तो इतना बड़ा अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप बेसिकली ये बता सकते हैं कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज के रिगार्डिंग में हमारा एग्रीमेंट ऑलरेडी है विद द फ्रांस. सो इट इज सिमिलर टू GSMOIA, दैट इज जनरल सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एज वी हैव विद USA. Then we have joint strategic vision of India-France IOR. So again, maritime cooperation has come into the picture. Joint strategic vision of Indo-France IOR. So for maritime cooperation, अगर आपको ये याद रहता है तो आप प्लीज इसको कोट कर सकते हैं एज एन एग्जांपल. या मैंने आपको बाकी भी चीजें बताई हैं कि 1/5 IOR में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया जो है वो फ्रांस के पास है बिकॉज ऑफ इट सर्टेन टेरिटरीज. उसके अलावा एक ये जॉइंट विजन है, स्ट्रेटेजिक विजन है विद रिस्पेक्ट टू IOR. Then defense cooperation में there is a high level committee on defense cooperation between the countries. So what all areas are of importance between India and France? In all those areas, the countries have ensured that they have dedicated channels into that cooperation field or into that particular domains, ताकि आपके जो भी प्रोसेस हो वहां पे वो हमेशा प्रायोरिटाइज्ड रहे, स्ट्रीमलाइंड रहे और उनमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो डिफेंस में हमारे पास हाई लेवल कमेटी है, हमारे पास रेगुलर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप है. तो टेररिज्म हो गया, नॉर्मल आपकी डिप्लोमेसी हो गई, स्पेशली फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी हैव फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन आल्सो वी हैव सर्टेन जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन. एंड फॉर डिफेंस आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, हाई लेवल कमेटी हमारे पास है. डिफेंस कोऑपरेशन में कुछ और एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं जो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है. तो 1960s में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा है, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे टाइम है जब फ्रांस ने हमारे एयर फ्लीट को स्ट्रेंथन करा था, सपोर्ट प्रोवाइड करा था. एंड नाउ अगेन France has provided us with the
टेक्नोलॉजी एंड एयरक्राफ्ट कॉल्ड एज रफेल। तो रफेल हमारे पास है, दैट इज ऑफ फ्रांस, डसॉल्ट का है ये। तो डसॉल्ट कंपनी इज अ फ्रेंच कंपनी। देन फ्रांस हैज आल्सो हेल्प्ड अस डेवलप P-75 Scorpion class submarines. There are basically 6 Scorpion class submarines. Although these are indigenous submarines, but the technology has been transferred by France. So this has significantly upgraded our Scorpion fleet or submarine fleet of the Indian Navy. So this is again a part of defense cooperation. आगे बढ़ते हैं, स्पेस कोऑपरेशन पे आता हूं मैं। तो स्पेस कोऑपरेशन में आप दोबारा एक बार रिकॉल करिए कि स्पेस कोऑपरेशन में कैसे इसरो को सेटअप करने में हेल्प करा। मिशन लॉन्चिंग व्हीकल्स में टेक्नोलॉजीज इसने प्रोवाइड करी। नाउ वी हैव जॉइंट स्पेस कोऑपरेशन मिशंस। तो ऑलरेडी 2 मिशंस हो चुके हैं एंड ऑन गोइंग इन द लेटेस्ट इज तृष्णा। तृष्णा आप याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड मेंस में भी आपको ये नाम ड्रॉप करना है स्पेस कोऑपरेशन में। सो तृष्णा इज अ जॉइंट स्पेस कोऑपरेशन, अ जॉइंट मिशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस वेयर अ सैटेलाइट वुड बी लॉन्च्ड, जो बेसिकली वाटर साइकिल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन वुड बी शेयर्ड बाय और बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सो तृष्णा इज अ जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज आउट हियर। Then we have also signed Civil Nuclear Cooperation Agreement in 2008। तो ये अगेन आपको एक ऐसा टाइम मिलेगा 2005 से लेके 2010 wherein we have signed Civil Nuclear Cooperation Agreement with multiple countries, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, because that was the time when we basically had signed 123 agreement with USA and we got waiver। तो हमें जब से waiver मिले, हमारे ऊपर sanctions हटे and we got waiver from the NPT NSG, तो तब से most of the countries have come towards India for signing such a kind of agreement। So we have such an agreement with Japan, we have with Kazakhstan, we have with Australia, Canada and France, USA, we have it with multiple countries। Civil Nuclear कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जाती है, यूरेनियम ट्रांसफर करा जाता है अगर यूरेनियम एज अ मिनरल इज फाउंड इन दोस कंट्रीज ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। सो थ्रू दिस एग्रीमेंट व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम फ्रांस, वी बेसिकली आर गेटिंग द कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड फ्रांस हमारे यहाँ जैतरपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हेल्प कर रहा है। उसकी एक कंपनी है फ्रांस की, अरेवा। सो अरेवा इन एसोसिएशन विद और इन कोलैबोरेशन विद L&T ऑफ इंडिया, L&T and Areva, these both companies are working together for the Jaitarpur nuclear power plant of Maharashtra। ओके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं एक बार और, लास्ट थिंग, बिकॉज यहाँ पे the relationship is more oriented towards strategic domains। आपको फोकस स्ट्रेटेजिक डोमेन्स पे रखना है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आप लास्ट में एज अ पासिंग रिमार्क यूज कर सकते हैं इन द मेंस एग्जामिनेशन until and unless the demand of question is specifically on economic cooperation। अगर क्वेश्चन की डिमांड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे आएगी, वैसे ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता अगर फ्रांस की बात हो रही है। तो अगर इन केस ज्यादा फोकस होता है क्वेश्चन में तो फिर आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी डेफिनेटली फोकस में लेके आएंगे। अदरवाइज इकोनॉमिक कोऑपरेशन आप सिर्फ पासिंग रिमार्क की तरह लिखेंगे, बाकी आप चालू करेंगे कोल्ड वॉर एरा से और कन्वेंशनल एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस पे आप फोकस करेंगे। देन आपका जो मेन बॉडी होगी आंसर की, यू विल ब्रिंग दैट और कवर योर मेन बॉडी ऑफ द आंसर विद द कंटेम्परेरी एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, जहां पे आप मैरीटाइम कोऑपरेशन को डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। फाइन, तो इस तरीके से आप इस आंसर को फ्लो करेंगे जब भी इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस पे बात होती है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स दे देता हूं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नॉट दैट ग्रेट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। एज ऑफ नाउ वी एंजॉय द ट्रेड ऑफ अराउंड $15 billion, approximately $15 billion, and we have set a target that we have to increase it to $18 billion by 2022। So neither we have good trade relations, good economic cooperation between both the countries, nor are we very much ambitious also। तो ना हमारे पास अभी कोई अच्छा ट्रेड है और ना हम इसको बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस क्लियरली सिग्निफाइज दैट व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही है। ये चीजें आपको यहाँ से पिक करनी है, प्लीज इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए करिए कि हमारा एम्बिशन क्या है। हमारा एम्बिशन भी बहुत
You can say it is very much moderate. $18 billion we can easily achieve it. इसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है ऑब्वियसली बिकॉज फ्रांस के एंड से टेक्नोलॉजी ज्यादा ट्रांसफर होती है टू अस. एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज इंडिया इज डेफिनेटली अ गेनर आउट हियर. सर्विसेज में हम डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं टू फ्रांस, बट इन टर्म्स ऑफ गुड्स वी बेसिकली हैव अ डेफिशिएट विथ फ्रांस. Then there are near around, or you can say more than 1,000 French companies in India. Now the good thing is that there are more than 25 R&D centers of French companies in India. तो ये बहुत अच्छी चीज है because this clearly shows that how technology transfer is taking place in India and how India is gaining or improving its capacity and capability because of its relation with the France and French companies. तो फ्रेंच कंपनीज के 25 से ज्यादा R&D सेंटर्स है इंडिया में. एंड फ्रांस इज द 9th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर फॉर इंडिया, लेकिन वो उतना आगे सिग्निफिकेंट नहीं है. बायलैटरल ट्रेड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज बायलैटरल ट्रेड. अब मैं लास्ट एक डायस्पोरा की बात कर लेता हूं. डायस्पोरा अगेन इज नीदर सो सिग्निफिकेंट एंड नॉर इट इज मच इन्फ्लुएंशियल. तो यहाँ पे डायस्पोरा भी बहुत ज्यादा हमारा मीडियोकर है. देयर आर नियर अराउंड 1 लाख Indian origin people who are in France as of now, and most of them are from the previously French owned territories from पौंडीचेरी, यनम, कराईकाल, माले. तो यहाँ पे जो लोग थे वो बेसिकली फ्रांस चले गए हैं एंड दे हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा आउट देयर. तो इसीलिए ये थोड़ा सा उतना इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी हमारी फ्रांस में एज ऑफ नाउ नहीं है. इंडियन एजुकेशन का फ्लो फ्रांस में बढ़ रहा था. वी हैड टारगेट ऑफ नियर अराउंड 2000 स्टूडेंट्स in 2019, but COVID-19 के कारण again this would have been impacted. तो एजुकेशनल फ्लो और एक्सचेंज प्रोग्राम्स यहाँ पे थोड़े से अफेक्ट हुए हैं. फिर कल्चरल रिलेशंस में आपको पता है कि आपको कौन सी बॉडी का नाम इस्तेमाल करना है, दैट इज ICCR. ये आपको हर जगह ड्रॉप करना है जहां पे भी आप पीपल टू पीपल टाइज या कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करेंगे, which stands for Indian Council for Cultural Relations. So it is the body which is basically responsible for maintaining cultural relations with any other country. और इस केस में ये क्या करती है, ये बेसिकली नॉर्मल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स स्टैब्लिश करती है, उनको इवेंट्स क्रिएट करती है बिटवीन बोथ द कंट्रीज बाय एंगेजिंग कम्युनिटीज ऑफ बोथ द कंट्रीज. सो दिस इज द वर्क ऑफ ICCR. लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो लिमिटेशंस आर नॉट देयर एज सच. ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हाँ, जस्ट टू मेंशन फ्यू लिमिटेशंस यू कैन डेफिनेटली डू दैट. Few of the limitations would be with respect to delays. There have been much delays in the investment projects of both the countries. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये कब से फ्रांस हमारी हेल्प कर रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट. तो अभी भी वहां पे काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चल रही है, एंड सच इज द डिले इन द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. सेकेंडली, आप सेम चीज मेंशन कर सकते हैं डिफेंस एक्विजिशन में. डिफेंस एक्विजिशन फ्रांस के साथ हमारा इंक्रीज हो रहा है एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्यू ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज विद रिस्पेक्ट टू द राफेल डील. तो ये एक लिमिटेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. मैरीटाइम कोऑपरेशन हमारा एस्केलेट नहीं हो पा रहा है टू द डिजायर्ड लेवल्स. सो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन दैट यू कैन मेंशन. So otherwise there is no limitation between both the countries. और एक और अगर आप चाहें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस कर सकते हैं, that bilateral trade between both the countries given their market size, given their you can say कैपेसिटी टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट. फ्रांस के पास कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास ह्यूज मार्केट है. सो गिवन द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द कंट्रीज, still you are not able to increase the economic cooperation between both the countries. So this is particularly a limitation, especially on the Indian part, because India के exports यहाँ पे बहुत low है. India अपना service sector को increase कर सकता है definitely, student exchange program increase हो सकते हैं, and यहाँ पे जब आप way forward mention करेंगे, ये चीजें limitations की हो गई. In way forward, you basically will have to talk about
इंक्रीजिंग इंडियाज इंडिजनाइजेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिजनाइजेशन, जो फ्रांस के थ्रू इंडिया को बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी कर रहा है फ्रांस. फ्रांस हैज ऑलवेज रिमेन कोऑपरेटिव इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. तो यूजिंग फ्रांस टेक्नोलॉजी वी कैन इंप्रूव मेक और वी कैन बेसिकली गिव अ बूस्ट टू द मेक इन इंडिया प्रोग्राम. तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आप बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं. ये आपका पहला वे फॉरवर्ड होगा. दूसरा वे फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड ही होगा, बट इन दी ओवरऑल R&D. डिफेंस के अलावा आपको क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में, ओवरऑल अर्बनाइजेशन में, those can also be taken from France. France can be very much helpful for India out here. And lastly, you will have to focus on tourism as well, which will further enhance the relations between both the countries. तो इससे पीपल टू पीपल टाइज इंक्रीज होंगे. ऑलरेडी फ्रांस में इंडिया के टूरिस्ट काफी जाते हैं, बट वी नीड टू इंक्रीज और अट्रैक्ट फ्रेंच टूरिस्ट टुवर्ड्स इंडिया एज वेल. तो फ्रेंच टूरिस्ट इंडिया आए, इसकी हमें यहाँ पे कोशिश ज्यादा करनी है. तो टूरिज्म पे आपको फोकस करना है, बिकॉज दिस इज अगेन एन एरिया जो थोड़ा सा अभी तक उतना ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया गया है, उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं. So this was an overview of India-France relations. मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जाएगा तो आप उसे एड्रेस नहीं कर पाएंगे. एक चीज और जो आप इंडिया फ्रांस में मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन में जब आप इंडिया फ्रांस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो या तो आप कोल्ड वॉर एरा से कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक करते हुए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. That how French Revolution, principles of French Revolution basically inspired the revolutionaries of India to achieve their independence, and since then we have been maintaining good relations between both the countries. So a relation between the largest democracy and a relation between the oldest democracy. So this is the relation that we have, that between the oldest and the largest democracy, French Revolution, freedom struggle, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे. कीवर्ड्स हैं, कैसे आप हिस्ट्री को लिंक कर रहे हैं प्रेजेंट से, कोल्ड वॉर को आप लिंक कर रहे हैं आज की सिचुएशन से. If you take an Academy subscription, you get access to all the educators, their courses, their classes on an Academy's platform. You get all the classes on an Academy as live classes. That is, the classes are on real-time manner, which makes the environment of class very much interactive and engaging. You also get test series and doubt clearing sessions at regular intervals, जो ensure करते हैं कि आपका basically proper periodic assessment होता है and no gray area of yours is left to be touched upon during this preparation of yours of civil services examination. You can easily take down the Unacademy subscription by downloading Unacademy's learning app and installing it on a mobile phone. After that, you have to choose plus category and the category of the examination that you are preparing for. In our case, the category would be UPSC Civil Services examination. You can choose any duration of the Unacademy subscription plan ranging from 1 month to up till 36 months, depending upon your own need and requirement. The recommended duration out here would be of 12 months, that is 49,500 rupees plan, on which you can avail extra 10% off if you use my code NAMAN, NAMAN, and the final price then would be reduced to 44,550. Yes, thank you all for your patient listening. Have a great day.